Hello, welcome to the lecture room. I am Shruti Singh Chauhan, Assistant Professor of Commerce in Nirmala College. Today we discuss 12th CBSE Board Accountancy subject. Now, if we lighten up the syllabus is like financial statement of non-for-profit organization. It contains 10 marks. Accounting for partnership firm, it contains 35 marks in exam. Accounting for companies, it have 15 marks. Analysis of financial statement, it is 12 marks. Cash flow statement is of 8 marks, and the rest marks 20 marks for project work. Today we are going to discuss the fundamentals of partnership firm. Now, the question arises, what is partnership firm? Many of us hear the word partnership in our life. So what is partnership? For example, if A and B both are the friends and they decided to do business togetherness is known as partnership firm. हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, और उसी के आगे जब दो या दो से ज्यादा मिलकर के लोग काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है. We have act for this partnership act 1932. According to that, in section 4, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Means पार्टनर कोई एक भी सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, और जब वो बिजनेस करते हैं तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं. दिस इज नोन एज पार्टनरशिप. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट, देयर शुड बी two or more person. Now the question arises, person? Yes, all persons are eligible for partnership except the person who is minor. Minor means the person who is below 18 will not able to go in partnership. Another, the person who is unsound mind is not able for partnership. Now the second characteristic is agreement. Now what is agreement? Agreement जहां पर दोनों मिलकर के या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक पॉइंट पर आकर के एग्री करते हैं. Now lawful business. What is lawful business? In Partnership Act 1932, lawful business is which is legally done. For example, say in Ujjain. In Sihast, for examples, liquor is banned, and if we are doing business of liquor, this is illegal business. So there should be a lawful business. Now, profit sharing. What is profit sharing? Profit sharing means they will distribute their profit according to their capital ratio or whatever the agreement is. Now, next characteristic is business can be carried on by all or any of the partners acting for all. यहाँ पर ये माना जाता है कि पार्टनरशिप में कोई भी एक बिजनेस कर सकता है या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक बिजनेस को चला सकता है. या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करें या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर बिजनेस करे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज राइट ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं? हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ ली पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक बिजनेस चलाते हैं और किसी पॉइंट पे एग्री होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होती है. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. नाउ द राइट ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं? तो सारे पार्टनर्स के ये राइट होते हैं, दे कैन विजिट बिजनेस एनी टाइम, दे कैन manage their books, they can manage their business, and they have right to ask about the accounts of the business. Now, what is partnership deed? For example, in last characteristics we discuss about the agreement. Now, when agreement is in written form is known as partnership deed. Partnership deed may be in oral or in written. Partnership comes into existence by an oral or written agreement.
it is better to have written agreement to avoid any dispute. This written document known as partnership deed details the term and condition of partnership. It is a legal document signed by all the partners and has clause on the followings. पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि कुछ फॉलोइंग क्लॉजेस है, आई विल एक्सप्लेन यू। ये पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होती है और सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं किसी पॉइंट पर और वो साइन करते हैं। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड? फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। से इन दिस पॉइंट द नेम ऑफ पार्टनर, द क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स इज रिटन। इन सेकेंड, description of the firm. Description of the firm means what business you are going to do, at what percentage, everything will be written in this form. Principal place of business means the actual address of the firm is principal place of business. Now the next point is nature of business. What is nature of business? Means what business you are going to do. For example, you are going to open a firm of poultry farm. So this is the nature of business. Commencement of partnership. When you started the partnership, that date should be written on the partnership deed. Now the capital contribution. Now what is capital contribution? For example, A and B decided to do partnership and A decided he will bring 5 lakh and B will bring 4 lakh. This is capital contribution. Now what is interest in capital? When A and B both are bringing their capital, it is the mutual agreement, mutual consent of A and B कि what percentage they will give on the capital is written in this deed. Interest on drawings. Now we know that what is drawing. जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या काइंड में कुछ पैसा या कुछ भी लेकर के जाता है, वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। तो जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो हम ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लेंगे, उसका परसेंटेज भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो they decided mutually, either they will do 5:4 according to their capital or any, but it should be with a mutual consent. Next point is interest on loan. What is interest on loan? Partner give advances or loan to a partnership firm is known as loan. So if firm is taking loan from a partnership, तो उसे इंटरेस्ट भी देना है। अब वो कितना इंटरेस्ट देना है, जितने भी पार्टनर्स होंगे सब म्यूचुअली डिसाइड करके वो इंटरेस्ट ऑफ लोन आपको बता देंगे और ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में होगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन मींस प्रॉफिट के अलावा जब आप पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देते हैं फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क इज नोन एज रेम्यूनरेशन। इट शुड बी ऑल्सो रिटन इन पार्टनरशिप डीड। नाउ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स कब होता है, हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब आप रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, तब आपको असेट्स को फिर से वैल्यू करना पड़ता है। तो वो आप मार्केट रेट पे करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे करेंगे, किस पे करेंगे वो आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। नाउ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है पार्टनर का, एडमिशन होता है, तो वी हैव टू पे समथिंग टू द पार्टनर। वो क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। अकाउंटिंग पीरियड हम लोग 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जब भी कमेंस होगा हमारा बिजनेस, वो हम अकाउंटिंग पीरियड लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। हर पार्टनर्स के डिस्क्राइब की जाएगी पार्टनरशिप में कि उनका राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी टोल्ड कि मैं मार्केटिंग करूंगा, तो ये क्या है? बी की ड्यूटीज है, तो इट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप कि बी मार्केटिंग करेगा हमारे बिजनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अपना ड्यूरेशन होता है। हमने 11th क्लास में एक पढ़ा था पॉइंट कि बिजनेस सालों साल चलता है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर अ पीरियड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इवेंट मैनेज करना है मुझे और मैंने और मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, उस इवेंट को मैनेज करने के लिए एक पार्टनरशिप हम बनाई है।
तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा मेरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कौन सा पार्टनर बैंक के सारे ऑपरेशन करेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट स्लाइड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अभी हमने डीड पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा था कि एग्रीमेंट ओरली भी होता है और रिटन भी होता है। नाउ इफ देयर इज रिटन एग्रीमेंट देयर इज नो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, और अगर डिस्प्यूट होता भी है तो हम रिटन एग्रीमेंट में बता सकते हैं कि वी डिसाइडेड दिस पॉइंट्स। नाउ अगर ओरल डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम क्या प्रूफ देंगे? उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस दे के रखे हुए हैं। क्या है वो प्रोविजंस? अगर पार्टनर्स का डिस्प्यूट्स होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस में, फॉर एग्जांपल ए एंड बी decided to share their profit and loss in 3:2, but after 1 year or 2 year B से कि नहीं मेरा 3:4 का रेशियो था। Now and there is no written deed, what we will do? क्या करेंगे फिर जब पार्टनरशिप एक 1932 में प्रोविजन दे के रखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मींस 1:1 के रेशियो में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे। दूसरा डिस्प्यूट्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है, फॉर एग्जांपल बी शेयर 5 लाख कैपिटल एंड ए शेयर 4 लाख कैपिटल। नाउ ए टोल्ड कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बी ने बोला नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हुआ? दे हैव ओरल एग्रीमेंट। नाउ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये दिया गया है कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डिस्प्यूट होता है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, पार्टनर्स को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन देयर कैपिटल। सेम थिंग विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है ड्राइंग को लेकर के, उसके इंटरेस्ट को लेकर के, तो no interest will be charged on drawings. Next point, interest on advances loan by partners. अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ लोन्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल बी ने 5 लाख कैपिटल के अलावा 2 लाख रुपीज दिए हैं और उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि बी को 8% कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ आफ्टर 2 years 3 year और आफ्टर अ ईयर बी ने बोला मुझे 8% नहीं मुझे 10% इंटरेस्ट पे लोन चाहिए। सो व्हाट वी विल डू? 1932 पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि अगर लोन के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ 6% ही उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी लोन के केस में। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अगर एग्रीमेंट में नहीं है कुछ और डिस्प्यूट होता है तो आप अलाउ नहीं करेंगे कुछ भी रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की अगर कंसेंट होगी तभी किसी पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हैं, वरना आप पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स को 6% मिलता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस पे लोन पे जब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या ऐसे भी अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो पार्टनर्स के लोन पे आप कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट में? जब भी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे फर्म के एक्सपेंसेस है, एंड वी नो दैट जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस है वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन। जब उसकी क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी तो हम पहले क्या करते थे 11th क्लास में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, जितने भी क्लोजिंग एंट्रीज होती थी हम उसको P&L में जाकर के क्लोज कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पे हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हम उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप जो भी लोन प्रोवाइड करेंगे उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। इट मीन्स कि जब भी आपको प्रॉफिट है नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं है, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है लोन के ऊपर। नाउ स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हमने तो पढ़ा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ एक्सटेंड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, इनकम क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ फर्म से रिलेटेड होगा। और जो नेट प्रॉफिट होगा उसको आप एक्सटेंड करके पार्टनर्स के एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है हम उसको लेकर के आते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, कि पार्टनर्स के लिए क्या बचा है, फर्म के सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम को डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स को देने के लिए प्रॉफिट होता है। इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने 11th में बहुत डीप में पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां पे क्या होगा? डेबिट एंड क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर पता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आता है। सारे एक्सपेंसेस आप क्या करते हैं? डेबिट साइड करते हैं, सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? आपका नेट प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट आप क्या करेंगे? यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के आएंगे। लॉस हुआ तो आप यहां उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है? जितने भी पार्टनर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो कहां होगा? फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। उसके बाद अगर आप पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं या कोई रिजर्व्स हैं, वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर्स का वो यहाँ पर आकर के क्या होगा? डेबिट होगा और पार्टनर्स के अकाउंट में जाकर के क्रेडिट होगा। वैसे ही यहाँ पे जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं ड्राइंग के लिए वो पार्टनर्स के अकाउंट में जाकर के डेबिट होगा और यहाँ पर क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? In a partnership firm, separate capital account is maintained for each partner because each partner has separate transaction with the firm. हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी होती है। एक कंसेप्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, तो सेम चीज यहाँ पर है। पार्टनर्स के फर्म के साथ अलग अलग क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ए ने मान लो 5000 पर एनम का क्या किया है? ड्राइंग्स लिया है और बी ने 2000, तो क्या हम दोनों को सेम अकाउंट में लिख सकते हैं? नहीं, ए अलग है, बी अलग है और फर्म अलग है, इसलिए इनके तीनों के अकाउंट्स भी अलग अलग होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाम से ही पता चलता है फिक्स्ड मींस कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड होगी वहां पे, और फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल वेरी करेगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल ए ने 5 लाख रुपीस क्या किया है? फर्म को दिया है एज अ कैपिटल, तो उस कैपिटल का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस 5 लाख ही रहेगा तब तक जब तक वो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देता है या वो कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं करता है। और उसके जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं, उसको जो इनकम होती है, उसको जो प्रॉफिट शेयर होता है, उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, वो करंट अकाउंट में जाता है। ये फिक्स कैपिटल है। आपने ड्राइंग्स अगर निकाली है तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है वो यहाँ पर आएगा और बैलेंस आपका सेम रहेगा। लेकिन जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं या आपने कुछ फर्म से क्या किया है, इनकम हुई है आपको, वो आप अपने कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर
कमीशन, सैलरी, ये सब कुछ आप कहाँ लिखेंगे? करंट कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। वैसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होती है? नाम से ही हम सजेस्ट कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग मीन्स जहाँ पे बैलेंस वेरी करते हैं, जहाँ पे कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? अप एंड डाउन होता है, वो क्या कहलाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में ये डिफरेंस है कि फिक्स्ड में आपको दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आप सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे और कैपिटल में सिर्फ आपका विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग्स या फिर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो। यहाँ पर आप जो दोनों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो मैचअप है, दोनों को जो मिक्स करके लिखेंगे वो फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन टू कैश और बैंक, जब आप ड्रॉइंग्स निकालेंगे यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, पीछे हमने क्या किया था? ये चीज हमने कैपिटल अकाउंट में ली थी और यहाँ पर एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजैक्शंस इसी अकाउंट में होंगे। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? पार्टनर जब एक्स्ट्रा काम करता है और उसके अगेंस्ट उसको सैलरी या कमीशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए ने डिसाइड किया कि मैं फर्म में 10 घंटे रहूंगा एंड मुझे प्रॉफिट के अलावा आई नीड सैलरी। ए एग्री अपॉन दैट। बी सेज कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूंगा, मार्केटिंग करूंगा एंड आई नीड कमीशन फॉर दैट। दैट इज रेम्यूनरेशन। Remuneration to a partner is an appropriation of profit and not charge against profit. It means salary or commission to a partner is allowed only if the partnership deed allows it and also the firm earns profit during the year. अगर प्रॉफिट होगा तो हम सैलरी एंड कमीशन देंगे। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होता है। जैसे लोन, आपको सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट है कि नहीं, आपको लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, बट सैलरी और कमीशन में ऐसा नहीं होता है। नाउ इफ वी कम टू द कमीशन, कमीशन आप दो तरीके से दे सकते हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। नाउ व्हाट इज बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आप नेट प्रॉफिट को कमीशन चार्ज करने के पहले कमीशन देते हैं, तब फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। जब आफ्टर चार्जिंग मींस कि आप कमीशन चार्ज कर चुके हो, उसके बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था कमीशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? कमीशन चार्ज करने के बाद वाला प्रॉफिट आएगा। आफ्टर चार्जिंग में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ कम टू द सैलरी। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं, आपको 4 केसेस दिए होते हैं सैलरी के। फर्स्ट केस क्या होता है सैलरी का? सैलरी ऑफ ए ₹60,000। केस 1, उन्होंने बोल दिया है ए को सैलरी देनी है 60,000 रुपीज एंड से नथिंग। क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज सैलरी और गिव सैलरी टू ए ऑफ ₹60,000। व्हाट वी विल डू? हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के डेबिट साइड में ए लिख के पूरा 60,000 लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, उन्होंने बोला है कि ए को आपको सैलरी देनी है 5,000 PM मीन्स पर मंथ। फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 5,000 पर मंथ बोला है, कितने मंथ है? 12 मंथ से हो गए 60,000। तीसरा केस, वो आपको बोल सकते हैं कि आपको एक को सैलरी कैसे देनी है? 15,000 पर क्वार्टर। फिर हम क्या करेंगे? 15 into 4 कर देंगे, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 15 into 4 एंड 60,000 विल कम। वो हम नेट प्रॉफिट में जाकर के डेबिट साइड में लिख देंगे। फोर्थ केस क्या होगा? वो डायरेक्टली बोल देंगे 30,000 हाफ ईयरली आपको पे करना है। फिर क्या करोगे?
6 मंथ्स करने हैं तो 30 इंटू 2 60,000 हो जाएगा। तो ए की सैलरी क्या हो जाएगी? तो ऐसे 4 केस में आपको सैलरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो वो पर मंथ देंगे, और ये बहुत माइन्यूट सी चीजें होती है जहां हम सिली सी मिस्टेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे, देखोगे कि उसने ईयरली बोला है, पर मंथ बोला है, क्वार्टरली बोला है या हाफ ईयरली बोला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये एंट्री से डिस्कस करेंगे आज हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आप किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो अगर फर्म समझ के आप अपने आप को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो जब आप पार्टनर को सैलरी देते हो तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, या कमीशन देते हो तो वो क्या है, एक्सपेंसेस है। तो पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड है तो आप करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। फिर हमने बोला है सैलरी कमीशन सारे नॉमिनल अकाउंट से, तो नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड क्या होंगे, आपको क्लोज करने पड़ेंगे, तो एक क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। हम क्या करते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिख के डायरेक्टली उसको क्रेडिट कर देते, बट ये क्या है, पार्टनर्स का है, और अभी मैंने बताया था कि पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी इनकम्स होगी, वो सब कहाँ जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए हमको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन से उसको क्लोज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट लेता है कैश और काइंड में। ड्रॉइंग्स मीन्स द अमाउंट withdrawn in cash or kind by partners for their personal use. Drawings may be out of capital or against profit. आप ड्रॉइंग्स दो तरीके से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बी ने क्या किया है, 5 लाख रुपीज कैपिटल दिए हैं, तो वो उस 5 लाख रुपए में से धीरे धीरे करके ड्रॉइंग्स ले सकता है, या फिर वो प्रॉफिट में से भी अपना ड्रॉइंग्स ले सकता है। ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो आप दो मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मींस व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज इरेगुलर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, ए है, ए ने ड्रॉइंग्स ली है, उसने फर्स्ट मंथ में ड्रॉइंग्स ली है 5,000 रुपीज, सेकेंड मंथ में ली है 4,000 रुपीज, थर्ड में ली है 6,000 रुपीज। तो क्या ये इक्वल अमाउंट है? नहीं, वो हर मंथ, एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, डिफरेंट अमाउंट निकाल रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इन सब का टोटल करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको 6% से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 6/100 इंटू 1/12। अगर आपको 1 मंथ की निकालनी है तो 1/12। एवरेज पीरियड मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड आप तब यूज कर सकते हो जब किसी पार्टनर ने एक फिक्स्ड अमाउंट पे या यूनिफॉर्म तरीके से क्या लिया हुआ है, ड्राइंग लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बी ने हर महीने क्या किया है, 5,000 रुपीज को विड्रॉ किया है एवरी मंथ, तब हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्रॉइंग्स होगी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इसने 3 महीने के लिए ली है तो 15,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 6% से चार्ज कर रहे हैं, तो 6/100 इनटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड क्या होता है, तो एवरेज पीरियड लास्ट मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो आपने पहला ड्राइंग निकाला होगा उसके बाद जितने महीने बचे होंगे वो, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो भी लास्ट ड्राइंग होगा और उसके बाद जितने भी मंथ्स बचे होंगे उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज
पीरियड निकल जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? जो भी पार्टनर्स फर्म में कैपिटल देते हैं उसके अगेंस्ट हम इंटरेस्ट उन्हें देते हैं, वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू compensate a partner for contributing capital to the firm in the excess of profit sharing ratio. Like interest on drawings, it is also calculated at the agreed rate with reference to the time capital has been used in the business. Interest on capital is calculated on the opening balance of the partner's capital. Now drawing देख लिया हमने, हमें प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट दिया गया था या हम उसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन्होंने बोल दिया है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि हम ओपनिंग बैलेंस पे क्यों दें? बैंक अकाउंट होता है जब आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, 1 अप्रैल को, तो वो क्या करते हैं, एक मैसेज आता है आपको 31 मार्च को, या अगर वो हाफ ईयरली देते तो एक मैसेज आता है कि आपका इतना इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया है आपके अकाउंट में। तो वो क्या करते हैं, आपने जो पैसा 1 अप्रैल को जमा किया है उसी के ऊपर तो वो देंगे आपको इंटरेस्ट। वैसे ही सेम केस में आप क्या करेंगे, जो मेरी कैपिटल मैंने 1 अप्रैल को लगाई है, एट द बिगिनिंग में लगाई है, उसी कैपिटल को मैंने साल भर या मेरी फर्म ने साल भर यूज किया है, तो उसी कैपिटल के ऊपर ही तो मुझे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर के इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे या ओपनिंग कैपिटल पे ही क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब क्वेश्चन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होता है। नाउ व्हाट वी विल डू, कुछ नहीं, हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैपिटल का, तो फिर आप क्या करेंगे, एक रूल हमेशा याद रखना, अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है ना, क्लोजिंग बैलेंस ये है, नीचे से ऊपर जाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या करके आए हो, कुछ चीजें प्लस कुछ चीजें माइनस करके आए हो, तब क्लोजिंग बैलेंस पे आए हो। तो ऊपर जा रहा है तो क्या करोगे, वापस रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो जो चीजें लेस हो गई है उसको ऐड करना है, और जो चीजें ऐड हो चुकी है उसको हमको लेस करना है। एक फॉर्मूला बता देती हूं, अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग माइनस हो गई होगी तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, फिर आप क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल ऐड किया था हमने, ऑब्वियसली अगर हमारे पास कैपिटल आया होगा तो हमने कैपिटल में ऐड किया था। तो इस साल क्या हुआ है, कैपिटल ऐड हुआ है। अभी मैंने कहा था कि हम जो जुड़ गया है उसको लेस कर देंगे और जो लेस हुआ है उसको हम प्लस कर देंगे। तो एडिशनल कैपिटल क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो उसको आप लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल को। उसके बाद क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट है उसको भी आप लेस कर दोगे, क्योंकि इस साल का प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल में जाकर के ऐड हुआ होगा, ये आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ए और बी दो पार्टनर्स है, ए ने 4,80,000 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है, ठीक है, बी ने 5,40,000 को क्या किया है, कैपिटल लगाई है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको 6% से इंटरेस्ट चार्ज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, 4,80,000 इंटू 6/100, ये हमने क्या निकाल दिया, कैपिटल निकाल दी, कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि 1 अक्टूबर को दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपीस हो जाना चाहिए, फिर क्या करोगे, हमारे पास पूरा साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च, अक्टूबर यहीं कहीं बीच में आएगा, 1 अक्टूबर, ठीक है।
अब 1 अक्टूबर को बोला गया है कि दोनों की कैपिटल हमको 5 लाख रुपीस करनी है। मींस हमको ए में 20,000 क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी 5 लाख रुपीस क्या होगी, ए की कैपिटल होगी। और वैसे ही हमको यहाँ से 40,000 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तब बी की क्या होगी, यहाँ पर जाकर के कैपिटल होगी। तो हम ऐसे ही कर दे। और हाँ, ये 40,000 ड्रॉइंग्स नहीं है, ये क्या कहलाएगा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, क्योंकि फर्म की डिमांड थी कि हम यहाँ से 40,000 हटा ले, यहाँ से हम 40,000 कम कर दे। अब हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? क्वेश्चन ये बोला है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए की कैपिटल 4,80,000 थी और बी की 540 थी, और आपको 6% से क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। लेकिन 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपीस दोनों की कैपिटल हो जानी चाहिए। नाउ व्हाट वी विल डू, कुछ नहीं, जैसे हम हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट लगाते हैं हम वैसे ही इंटरेस्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए को ले लेते हैं हम, 4,80,000 कब तक थी ये, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, कितने महीने हो गए, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 5 महीने हो गए कि 6 महीने, 6 मंथ्स। ठीक है, आप क्या करोगे, 4,80,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100। क्यों? क्योंकि हम 6% की रेट से क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये, 14,400। अब 20,000 फिर ऐड कर दिया हमने, 5 लाख की कैपिटल हो गई है अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। फिर 6 महीने का आप क्या करोगे, अब तो हमारे पास 5 लाख है ना, तो फिर आप क्या करोगे, 5 लाख रुपीस के ऊपर वापस से 6/12 इंटू 6/100 करके क्या करोगे, इंटरेस्ट लगाओगे। तो इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, 15,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 29,400। ये क्या हो गया, ए के कैपिटल अकाउंट में 29,400 जाकर के आप लिख देंगे, ये से इंटरेस्ट चार्ज होगा। वैसे ही आप बी का लगाएंगे, बी का क्या हुआ, 5,40,000 था, ये भी 6 मंथ्स के लिए था, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर। तो 5,40,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, और 40,000 हटाने के बाद फिर 6 मंथ्स के लिए था, 5 लाख इंटू 6/12 इंटू 6/100। ये पूरा इंटरेस्ट आप कहाँ कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर के लिख देंगे। लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर, डिविजन ऑफ प्रॉफिट। डिविजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ लेक्चर वी सेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जहां पे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट और लॉस अग्रीड रेशियोज में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म को हुआ है 50,000 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ए एंड बी डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब 50,000 को आप क्या करोगे, 1:1। तो हमेशा आप क्या करोगे, जो ए का रेशो है वो 1 है और बी का रेशो 1 है, तो इन दोनों का सम ऑफ हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो 1/2, और बी को भी कितना मिलेगा, 50,000 इंटू 1/2। ये क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/2 नहीं है, क्या है, 3/2 है, तो आप क्या करेंगे, 50,000 इंटू ए का रेशियो कितना है, 3, इन दोनों का सम अप कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 30,000। बी को कितना मिलेगा, वही 50,000 इंटू बी का शेयर कितना है, 2, दोनों का सम अप कितना है, 5, 20,000। टेक अ क्विक रिविजन ऑफ द टॉपिक व्हाट वी learn today.
फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है हमने वो पढ़ा, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के काम करते हैं, एक अग्रीड पॉइंट पे काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो पार्टनरशिप होता है। हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा कि रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, पार्टनर का नाम, बिजनेस का नाम, किस रेशो में वो शेयर करने वाले हैं, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लगा सकते हैं। तो 2 मेथड पढ़ी थी, उसके लिए हमने प्रोडक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज एवरेज पीरियड मेथड। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा, वो क्या था कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस पे ही अपना इंटरेस्ट चार्ज करना है। होप यू लाइक दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुडविल एडमिशंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.